guys, what's up? This is Simran and welcome back to my channel All About Honesty and today मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इजी है करना। और यस, ये प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ करे वो बहुत अफोर्डेबल है। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। तो आप इस मेकअप लुक को किसी भी शादी, किसी भी पार्टी, हर जगह वियर कर सकते हो और किसी भी तरह की ड्रेस के साथ वियर कर सकते हो। या हर ड्रेस के साथ मेकअप जाता ही जाता है। तो अगर आप ईद पे ये मेकअप लुक वियर करने वाले हो या किसी भी और फंक्शन में, तो नीचे कमेंट में फटाफट से यस लिखो प्लीज़, अगर आप करने वाले हो तो। और अगर आप करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे ज़रूर इन पिक्चर्स को सेंड कीजिए, मैं उनको ज़रूर रीपोस्ट करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ कहीं पे मेंशन कर दूँगी, यू कैन सी दैट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, चलते हैं मेकअप ट्यूटोरियल की तरफ। Okay, so basically I have not applied anything today and today I'm going to start this makeup with Good Vibes Rosehip Serum. This is like my favorite product. I use it before my makeup and as a skincare product as well, and this is a must in my skincare routine. I'm taking just like few drops on my dropper and I'm going to take it into my hands. And rather than rubbing it all over my face, I'm just going to dab it like this. I am pushing it inside my skin because it will help me to waste less product. Okay, so this is just not enough. I'm going to moisturize my skin further with this Garnier Skin Naturals Light Complete Moisturizing Serum and Lotion. This is so good. This is like suitable for me and it might suit or not suit you, so always do a patch test because I recommended this to one of my friend and it doesn't suit her, so it is just up to you. By the way, I have already done toning and afterwards I have applied serum and now I'm applying moisturizer. This gives like the brightening effect instantly. This is so good. Okay, so the next important step is to prime your face. So I'm going to use this Purple True Jewel 24 karat gold primer and yeah, I have already reviewed this product in my Instagram IGTV. You can check that and it is like literally worth the money. This is so inexpensive and this is so good. You can already see the bloodiness on my face. This is because of this primer. This is like so good. Just to hydrate my skin a little bit more, I'm going to use this hydrating primer. This is basically for the blur plus redness plus control pigment, so it is like the necessity for me because I have pigmentation over here. Okay, so for the base today I'm just going to use the Swiss Beauty palette because it has like all the shades. This is the shade for the color correcting and this is the shade for contouring and this is my foundation shade. I will like mix two foundation shades because one is like very dark for me and another one is like very light for me, so I'm going to use both these together. So I am going to start with color correcting. Okay, so I've already taken this orange color corrector on this plate because my foundation mixing palette was just not there. I'm not able to find it. I don't know where it has gone, so I'm using this plate and I have put this orange color corrector on it and have blended it properly with my fingers. So now I'm going to take this kind of brush. You can see the brush knowledge video if you want to know everything about brushes because this can go inside till this area. You can see how easily it has gone to this place. Any other brush would not do that, so I am doing with it. It is really important that you color correct your face because if you are not doing that correctly, it is just not going to look flawless on your skin. And looking flawless after your makeup is most important and necessary thing. If you have like the red pimples over here, you can apply the green color corrector. That is like necessary. I will upload a full video on color correction knowledge, which is going to be the part 4 of this series, makeup knowledge series. You can check that out further. And ओके, सो बेसिकली जो मैंने अपना कलर करेक्टर है उसको मैंने ब्लेंड करा है ब्रश से। आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो. इट इज अप टू यू, इट इज योर चॉइस. आई एम गोइंग टू लेट इट सेट फॉर फ्यू मिनट्स so that it can absorb into my skin and it does not move when I apply like concealer or foundation over it. So the next thing I'm going to do is my eyes so that it takes time to get settled in.
जैसा कि आप में से तकरीबन हर बंदा जानता है कि मेरे को जो आईब्रोज है वो आईब्रो पेंसिल से ज़्यादा आई शेडो से करना पसंद है, तो मैं आज वही करने वाली हूँ। अपने आई शेडो से ब्राउन और डार्क ब्राउन को लेके मिक्स करके इस तरीके से कुछ अपनी आईब्रोज को बनाने वाली हूँ। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम द मिडल ऑफ योर आईज एंड नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर आपको ज़्यादा पिगमेंट ड्रॉप नहीं करना है, ज़्यादा पिगमेंट आपको डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप वैसे डिपॉजिट करोगे तो इट इज़ गोइंग टू ruin your eyebrows. See, I have done it from middle first and then I have taken it through the front side, because excess जो होगा वो front में आपका नहीं आएगा इस तरीके से। You can see the difference already. ओके, तो मैं आप जब अपनी आईब्रोज अच्छे तरीके से कर चुकी हूँ, आई हैव टू अप्लाई कंसीलर और सम फाउंडेशन ऑन माई दिस एरिया, ऑन माई आईलिड एरिया, सो दैट जो आई शेडो का पिगमेंट है वो बहुत अच्छा तरीके से आए, अदरवाइज आई शेडो का पिगमेंट अच्छे तरीके से नहीं आए। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन माई स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट ओवर देयर एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई आईलिड एरिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर से ही ब्लेंड करना बेस्ट रहता है, और जो फिंगर्स पे आपके एंड में बच जाएगा आप उसको डायरेक्टली अपने आईलिड एरिया पे भी लगा सकते हैं, और यू कैन डू इट विद दी मिक्सिंग प्लेट के साथ, जो अलग से स्टिक आती है उसके साथ भी, बट आई डोंट हैव मिक्सिंग प्लेट एंड दैट स्टिक विद मी राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो कहाँ चली गई। आई एम गोइंग टू डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन माई आईलिड एरिया। I'm going to blend it with this beauty blender. This is the dry beauty blender and not the wet one, because I want the color to be deposited first on the desired area and then I will use the damp beauty blender to blend it. आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ टू हाईलाइट माई ब्रोज। हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको ब्रश की नॉलेज में ऑलरेडी बताया था कि आपको इसके लिए कौन सा ब्रश चाहिए होगा। आप वो ब्रश उठाकर इसको कुछ इस तरीके से लाइन कर सकते हैं। इसको ब्लेंड करने का तरीका यह है कि इसी ब्रश को लेके आपको इस तरीके से ऐसे ब्लेंड करना है। सी, ये वाली लाइन काफ़ी हद तक ब्लेंड हो गई है। ओके, सो आई एम डन विद माई ब्रोज एंड यू कैन सी दैट इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड आज के मेकअप में मैं आप लोगों को, बिकॉज ये ईद लुक मेकअप है एंड बहुत से लोग होते हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता है, सो आई एम गोइंग टू डू अ ईजी आई मेकअप ट्यूटोरियल जो हर किसी ड्रेस के साथ जाएगा भी, आप इजीली कर भी सकते हो और उसके लिए सामान भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। द बेस्ट मेकअप लुक फॉर द ईद डे, बिकॉज यू हैव टू शाइन ब्राइट एंड यू हैव टू लुक लाइक गॉर्जियस वुमेन। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक द वार्मर शेड. दिस इज द ब्राउन शेड which I am going to take today, because warmer shade on transition looks perfect. And you can see how I am applying it. In case if your eye creases a lot, आपकी आंखों को मेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा वो हटने लग जाता है या क्रीसिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, मेक श्योर कि आप उसको कॉम्पैक्ट से सेट कर रहे हो। मेरे को उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड द स्टेप, बट यू कैन टोटली डू दैट। गाइस, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी IGTV पे जिसके ऊपर मैंने मेकअप करा था, बेस मेकअप था, वो क्राइलॉन का बेस मेकअप था, और आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ अ स्विस ब्यूटी मेकअप। सो उसके बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, बोथ हैव द डिफरेंट पिगमेंटेशन, डिफरेंट टेक्सचर, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माई फाउंडेशन नॉलेज वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 5 ऑफ द मेकअप नॉलेज सीरीज। सो उसके लिए वेट करें। एंड येस गाइज, यू कैन सी ये थोड़ा थोड़ा वो वाला मेकअप लग रहा है जो मैंने आज इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला था, जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए करा था, एंड दैट वाज लुकिंग लाइक परफेक्ट मेकअप। मैंने कुछ इसी तरीके से वो करा था, लेकिन वो मेकअप ट्यूटोरियल मैं कभी और दूंगी। आज जो मैं मेकअप ट्यूटोरियल ले रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल फॉर द ईद, आई एम श्योर अबाउट इट। आपसे भी मेरी तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, कुछ लग जाता है, आप साथ साथ कुछ इस तरीके के स्पंज से या किसी भी बेकार कपड़े से, किसी भी टिश्यू से, किसी भी चीज़ से उसको साथ के साथ रिमूव कर सकते हो। सी, मेरे यहाँ पे फैल गया था तो मैंने उसको रिमूव कर लिया। अब मैं वो ब्रश ले रही हूँ जिसके ऊपर कोई कलर ऑलरेडी नहीं है, जिससे कि मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने वाली हूँ। ब्लेंडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट ब्लेंडिंग योर आई मेकअप राइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड। सो हमेशा मेक श्योर कि आप अपने मेकअप को, चाहे वो बेस मेकअप है चाहे वो आई मेकअप है, उसे अच्छे से ब्लेंड करें। यू कैन ऑलरेडी सी कि पहले कैसे डार्क सा विजिबल था, लाइन्स विजिबल थी, लेकिन अब ऐसा कुछ विजिबल नहीं हो रहा, धीरे धीरे जा रहा है वो चीज़।
गाइस अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है या फिर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते हो, टाइम की शॉर्टेज हो रही है या कुछ भी रीज़न है, तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट या फिर थोड़ा सा स्किन कलर लगा के इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप और करना चाहते हो, तो मैं जो आगे करने वाली हूँ आप वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन स्टॉप योर आई मेकअप राइट हेयर ओनली बिकॉज इट इज़ लुकिंग लाइक द परफेक्ट मेकअप। यहाँ पे हल्का सा जब वो स्किन कलर लग जाएगा ना, तो इट इज़ गोइंग टू लुक परफेक्ट। उसका मेकअप ट्यूटोरियल भी मैं कभी और डाल दूंगी, लेकिन आज ईद का मेकअप ट्यूटोरियल चल। ओके, तो आज जो मेरे पास ये ग्लिटर आईलाइनर है जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हिलरी रोडा का लिया था, मे बी ये ओरिजिनल है नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने लोकल कॉस्मेटिक स्टोर से लिया था। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। यू कैन सी हाउ आई एम यूजिंग इट। आई एम गोइंग टू यूज़ इट डायरेक्टली। पहले तो मैं इसको यहाँ लगा दूंगी। इट इज़ गुड एज आई लाइनर एज वेल। यू कैन सी मैंने अभी आई लाइनर की तरह इसको लगाया है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप फर्दर इसके साथ जो मैं कर रही हूँ वो भी कर सकते हो। इसको पूरे आईलाइट एरिया पे लगा सकते हो डायरेक्टली। You can see it is looking so perfect guys। तो गाइस आप देख सकते हैं इसको लगाना कितना ज़्यादा इजी था। मैंने डायरेक्टली उसको अप्लाई कर लिया। अब मेरे को थोड़ा सा ब्लेंडिंग भी करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ कट क्रीज मेकअप, और ये क्रीज तो किसी भी एंगल से नहीं है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा, तो मैं उस ब्राउन कलर को दोबारा से अपने ब्रश पे लेके इस तरीके से इन दोनों को मर्ज कर दूंगी। गाइस ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्लिटर ये शैडो जो है अपने आई पैलेट से लेके इसके ऊपर प्रेस करूंगी बिकॉज आई लव मोर ग्लिटर। सो यू गाइस कैन सी इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट नाउ। लेकिन अब हमें अपने बेस की तरफ चलना पड़ेगा दोबारा से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी कलर करेक्ट कर लिया था, तो नाउ इट्स टाइम फॉर कंसीलर। आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसीलर। दिस इज फ्रॉम LA Girl Pro एंड दिस इज इन द शेड Warm Honey GC982 and I'm going to apply it directly। गाइस ये बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे स्किन शेड से यू कैन सी थोड़ा सा डार्क है, बट मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ सो दैट जो मेरी बाकी की डार्क स्पॉट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। आप लोग स्पॉट कंसीलिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पिंपल्स हैं, तो मेरे इतने ज़्यादा नहीं हैं और विजिबल पिंपल्स तो बिल्कुल भी नहीं हैं, तो मैं नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आप कर सकते हैं प्रॉपरली इसको। बाय द वे गाइज इट इज़ द बिल्डेबल कंसीलर विच मीन्स कि अगर आपको कवरेज कम लगती है तो आप इसकी कवरेज इसे बिल्ड कर सकते हैं। एंड इसे मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, ड्राई से नहीं कर रही हूँ। गाइस टेक्निक मैटर करती है। मैंने आप लोगों को पहले भी मेकअप नॉलेज की वीडियो में बताया है कि टेक्निक मैटर्स अ लॉट, टेक्निक मैटर्स अ लॉट। गाइस जिस एरिया में ये नहीं पहुंच रहा है इट्स ओके, यू कैन टेक एनी ब्रश एंड कैन ब्लेंड इट। क्योंकि मेरे पास ये ब्यूटी ब्लेंडर जो था ये बड़ा वाला था जो डैम्प करा हुआ, तो छोटा वाला मेरा ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है उसे मैंने ब्लेंड नहीं करा एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट अदरवाइज। तो अब जब मेरा कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया, इट इज़ टाइम फॉर द फाउंडेशन। तो गाइस मैं नहीं चाहती अपने फेस पे आज ज़्यादा हेवी कंटोरिंग करने का, तो मैं फाउंडेशन से पहले कंटोरिंग भी कर लूँगी। गाइस कंटोरिंग के लिए मैं ये वाला शेड ले रही हूँ बिकॉज दिस इज द शेड विच इज़ गोइंग टू सूट मी। सो मैंने उसको भी प्लेट पे लेके पहले ब्लेंड कर लिया है। ओके, सो जिन लोगों को कंटोरिंग नहीं आती है और कंटोरिंग के लिए मेरे को बार बार मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली। सॉरी, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी ये लाइट शेड हो गया था, तो इसलिए अब मैंने दूसरा वाला शेड लेके उसी पैलेट में से मिक्स कर लिया है अपने प्लेट में एंड आई एम गोना यूज दैट। यू कैन सी दिस इज द परफेक्ट कलर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक हियर। यू कैन सी गाइस मैंने यहीं तक अप्लाई करा है, उसे नीचे तक ड्रैग नहीं करा है। Guys, this is very brown color, लेकिन ये ऑन स्क्रीन नहीं लग रहा है, I don't know, but कैमरा में ये लग रहा है, तो I'm sorry for that। आप जॉ लाइन से देख सकते हैं, इधर की जॉ लाइन और इधर की जॉ लाइन और इधर की जॉ लाइन ही नहीं है। ओके, सो मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से बिकॉज इसके ऊपर अभी फाउंडेशन आएगा। हम अपने फेस को ऑलरेडी एक शेड दे चुके हैं। आपको कंटोरिंग नहीं पसंद नहीं आती, यू कैन
टोटली स्किप इट। बट अगर आपको अच्छा लगता है अपने फेस को पतला बनाना, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी ये स्टेप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब मैं फाउंडेशन की बारी आ रही है। फाउंडेशन के लिए मैंने इस और इस शेड को मिक्स करा है बिकॉज ये बहुत डार्क है और ये बहुत लाइट है। एंड इन दोनों को मिक्स करके मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा सा सीरम डाला है। जी हाँ, मैंने सीरम डाला बिकॉज सीरम से जो ग्लो आएगा ना, दैट ग्लो मैन। ओके गाइस, सो मैंने ये फाउंडेशन जो लिया है, अब मैं इसको डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से लेके ही ब्लेंड करने वाली हूँ स्किन में। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप उसको पहले ब्रश से लगा लेना, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम 1 मिनट वीडियो पे करा था। और अगर आपको इतना ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। यू कैन सी द शाइन फ्रॉम फाउंडेशन। ये शाइन इसलिए है क्योंकि मैंने इसके अंदर ऐड करा है सीरम। अगर मैं इसको ऐड नहीं करती तो गाइस इतना शाइन कभी भी नहीं आता। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी एक साइड करके कि कितना शाइन और ब्राइट लग रहा है। यू कैन सी इधर कितनी शाइन है। ये जो शाइन है ये इधर है, इस साइड नहीं है, बिकॉज इसके अंदर मैंने सीरम डाला है विच हेल्प्स टू मेक योर फाउंडेशन ब्लेंड बेटर एंड लुक बेटर। मेरे हेयर पे भी लग गया। You can see my foundation is completely blended and now I'm going to use this white on face powder. Today I'm not going to use any loose powder and any compact because I want this video to be the budget friendly video. इसके अंदर मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो बजट फ्रेंडली थे एक्सेप्ट फॉर द आई शेडो पैलेट, बिकॉज मेरे पास अभी एक आई शेडो पैलेट ही है जो मैं शो कर रही हूँ एंड दैट इज़ एक्सपेंसिव। बट बाकी जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो सारे के सारे सस्ते हैं, चाहे वो स्विस ब्यूटी की पैलेट ले लो, चाहे वो आप प्राइमर ले लो। सो या इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। यू कैन सी कि इसने कोई भी टिंट नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से हमारे लिए बाकी सब चीज़ें ज़रूरी है उसी तरीके से हमें लोअर लैश लाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। सो वो जो मैंने ब्राउन कलर ऊपर लगाया था उसी को लेके मैं अंडर आई पे लोअर लैश लाइन पे यहाँ लगा। यू कैन सी द डिफरेंस कि लोअर लैश लाइन पे लगाने से कितना डिफरेंस आता है। एज यू कैन सी कि मैंने लोअर लैश लाइन कर लिया है। मैं इनर कॉर्नर पे उसी हाइलाइटर जो मैंने आपको दिखाया था ना कलर मैंने आई शेडो पैलेट से लिया था उसी से इनर कॉर्नर फिल करने वाली हूँ। इनर कॉर्नर को कुछ इस तरीके से फिल करा जाता है एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इट मेक्स लुक आई पॉप अप इमीडिएटली। तो मैं आज वाइट काजल लगा रही हूँ। इट इन्हांसेस योर आईज। यू कैन सी कि अभी मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लगाया, स्टिल डिफरेंस नज़र आ रहा है। मैं इसको बहुत डार्क करके नहीं लगाऊंगी, बहुत कम लगाऊंगी। सो आज मैं नेचुरल फॉल्सेस लगाने वाली हूँ जो कि है ये ब्यूटी लैश कलेक्शन फ्रॉम फैशन कलर एंड इट इज़ 100% सुपर नेचुरल आई लैशेज। एंड मेरे पास अभी यही पड़ी हुई है, बाकी सब खराब हो चुकी है। तो मैं मिडिल में प्लेस करूँ। ऐसे मैं इन आई लैशेज़ को थोड़ा सा और नेचुरल लुक देने के लिए सिर्फ इधर आईलाइनर लगा रही हूँ जहाँ से ये आई लैश नहीं लगी हुई है। It is looking more natural. Okay guys, so the next important step is to curl your eyelashes once again so that fake eyelashes and natural eyelashes जो है वो आपस में तो अब आती है सबसे फेवरेट पार्ट की मेरे, जो कि है ब्लश।
मैं लिपस्टिक से ही ब्लश लगाऊंगी। मुझे दूसरा वाला ब्लश आई डोंट नो पर पसंद नहीं आता मुझे, इसी से नेचुरल लगता है, अच्छा लगता है। एंड यस, मैं नोज़ पे भी लगाती हूँ बिकॉज वो नोज़ पे बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। एंड आई एम गोना टेक द ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नॉट द वेट वन एंड आई एम गोना जस्ट डैब इट इनटू माय स्किन। Now it's time for the highlighter. I'm gonna today take the stick highlighter because stick highlighter का जो मज़ा आता ना वो और किसी highlighter का नहीं आता। Now it's time for the lipstick. I'm gonna take this Huda Beauty lipstick. I love this lipstick. थ्री इन वन पैलेट में लेके जब मैंने ब्लश लगाया, दैट इज़ द लिपस्टिक ब्लश, तो उसको सेट करना बहुत नेसेसरी है। I'm gonna take little bit of it. Gonna take the bronzer. Gonna take the bronzer on same brush and gonna bronze it like little bit more, just to ले लीजिए, सीधा लगा लीजिए। हाइलाइटर भी हमने स्टिक वाला लगाया था, उसको भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसी पैलेट से हाइलाइटर लेके मेक श्योर जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो अपने नेक एरिया तक लगाना। मैंने नहीं लगाया बट दैट्स ओके बिकॉज मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ट्यूटोरियल ऑफ दिस। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं इस एरिया को। लास्ट मेरे को ये लिपस्टिक जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ग्लोई मेकअप है, बहुत शाइनी मेकअप है। शाइन इसके अंदर उस सीरम की वजह से भी आई थी। Okay, so I hope you enjoyed watching this video. Please like this video, comment down below, share this video with all your friends and yes बहुत सारे इसी तरह के मेकअप ट्यूटोरियल सब आपके रास्ते आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा। तो मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।